आप सबों को मेरा एक जय मसीह की। और मैं बड़ी खुश हूँ कि आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ एक नए संदेश के साथ। और आज का हमारा संदेश निर्गमन की पुस्तक से है और मूसा के बारे में आज हम सीखेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, एंड आई एम सो हैप्पी that I can come again to my channel to present to you another message from the book of Exodus, and it's about the life of Moses. So before God chooses him, and it's wonderful to be here and want to thank all the viewers for looking into my videos and giving me encouragement through your comments. God bless you as you keep on sharing my messages and keep subscribing to it. God bless you again. Let's pray. Our Father in heaven, once again, we are so privileged that we can come to your throne of mercy and we can praise your name, bring honor and glory to your name. I've emptied myself so that you will be able to fill it with the power of the Holy Spirit. Each word that I speak may be your word, and I may be able to speak the right word. Forgive my sins because I'm a sinner, and help me once again as you've been helping in the past. I pray for all my viewers, bless them abundantly as they watch this message, which I'm going to put up today. Thank you again for I ask these two blessings in Jesus' name. Amen. जैसे कि मैंने कहा, आज का मेरा मैसेज जो है निर्गमन उसका 3 और 4 अध्याय पे है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे हम सीखना मांग रहे हैं, क्या आज की हमारी स्टडी है, क्या हमें परमेश्वर बताना मांगता है। लोगों के दिमाग में ये रहता है कि वो परमेश्वर के सामने जाएं और उससे बातचीत करें, लेकिन जब परमेश्वर उन्हें चुनता है तो वो बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कैरेक्टर है जिसको हम मूसा कहते हैं। People, when they want to have an encounter with God, they're very happy and excited when God chooses them. They try to make excuses. This is what we are going to learn in today's message regarding Moses, and from the book of Exodus, chapter 3 and 4, few verses. And we will see how God wanted him to be the leader of Israelite and how he was making excuses. We all are living in this world where we want to make excuses for every little work that is given to us to do. हर एक काम जो हम करना मांगते हैं तो हम क्या करते हैं, बहाने लगा देते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारे लायक नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते। और मूसा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, 40 साल का जो समय था, उसने भेड़ों की देखभाल की और फिर उसने धीरज का लेसन सीखा। और जब उसने जलती हुई झाड़ी देखी तो उसके पास आ गया और परमेश्वर ने कहा, जहां तू खड़ा है अपनी चप्पल उतार दे। So when he was working as a shepherd for 40 long years for his father-in-law Jethro, so he saw the burning bush and so he came close. God told him, where you stand is a holy place. Take off your slippers. So he takes off his sandals and comes closer to the bush, not knowing that why God is talking to him through the bush. So we will see how we are going to how he's going to talk to God in this video or message for today. आज हम देखेंगे कि मूसा कैसे वो जलती हुई झाड़ी के पास जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि उसको परमेश्वर बुला रहा है, उसको एक लीडर का काम दे रहा है इजरायलियों के लिए। लेकिन जब वो जाता है तो परमेश्वर ने उसको वो काम सौंपा। यहाँ पे हम देखते हैं निर्गमन उसका 3 अध्याय की 11 और 12 आयत में, But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh, and that I should bring the children of Israel out of Egypt? So he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Now here, Moses feels he is unworthy. And so he says, Who am I that I should go to Pharaoh? Now Moses has a fear that if he goes to Pharaoh, the Pharaoh is definitely going to kill him because
he was the one who ran away from the presence of Pharaoh. And therefore he says, who am I? And God said, I will certainly be with you. Don't worry. You do the work that I want you to do. And let's see what Moses has to say. किंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कोई महत्वपूर्ण आदमी नहीं हूं, मैं कोई महत्वपूर्ण कोई खास इंसान नहीं हूं, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो फिरौन के पास जाए और इसराइल के लोगों को मिस्र के बाहर निकाल कर ले चले। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमको भेज रहा हूं। ये प्रमाण होगा कि लोगों को मिस्र के बाहर निकाल लाने के बाद तुम आओगे और इस पर्वत पे मेरी उपासना करोगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कह रहा, मैं कौन हूं, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, मैं कैसे इजराइल में जाऊंगा और वहां उनको लेकर आऊंगा। परमेश्वर उससे वायदा कर रहा है कि तू जरूर जाएगा और मेरे लोगों को वहां से निकाल के लाएगा। मैंने उनकी बुलाहट सुनी है और उनकी परेशानियां देखी हैं, और तू जब उनको लेकर आएगा तो इसी पहाड़ पे आएगा और मेरी उपासना करेगा। Now God is giving him a promise, assurance that he will only go. जिसको परमेश्वर चुन लेता है उसको कोई पीछे नहीं हटा सकता। उसका परमेश्वर की जो योजना है हमारे लिए, हम नहीं जानते कि क्या है, लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे लिए जो है वो हमारी बेहतरी के लिए है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना, कोई दूसरा आदमी को नहीं चुना। और वो एक ऐसा इंसान था जो भेड़ों की रखवाली कर रहा था। परमेश्वर जानता था कि इज गोइंग टू बी अ गुड शेपर्ड, सो the best person to lead the Israelites is Moses. And so here he chose him to be the shepherd of Israelites. वो चरवाहा बना इजराइलियों का, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना। हम यहाँ देखते हैं एक्सोडस 3:13-14 में लिखा हुआ है, the Lord our God. But the Moses protested, if I go to the people of Israel and then tell them, the God of your ancestors has sent me to you, they will ask me, what is his name? Then what should I tell them? God replied to Moses, I am who I am. Say this to the people of Israel, I am has sent. And the next question is, what is his name? Okay. यहाँ पे हम देख रहे हैं उसका नाम क्या है जो कि तुझे भेज रहा है। इजरायली लोग मेरे से पूछेंगे, तुझे किसने भेजा, क्या नाम है उसका? He said, they are going to ask me, what is his name, who has sent you? God says, I am who I am. यहाँ पे हम हिंदी का भी वर्जन देखेंगे कि क्या कह रहा, I am who I am. I am the one who has sent you. मैंने तुझे भेजा है। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, किंतु यदि मैं इस्राएल के लोगों के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, तुम लोगों के पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है, तब लोग पूछेंगे उसका क्या नाम है, मैं उनसे क्या कहूंगा? तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, उनसे कहो, मैं जो हूं सो हूं। जब तुम इस्राएल के लोगों के पास जाओ तो उनसे कहो, मैं हूं जिसने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। मैं हूं, इसका मतलब परमेश्वर है जिसने मूसा को भेजा है। I am the one who has sent you. And he says, you have to tell my name. My name is I am. मेरा नाम है मैं हूं जिसने तुम्हें लोगों के पास भेजा है, और वो लोग तुम्हारी बात का विश्वास करेंगे। तो यहाँ पे मूसा को जो है एक विश्वास और एक अश्योरेंस मिलती है कि वो जाएगा परमेश्वर के नाम से और लोग उसे पहचानेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भेजा है। यहाँ पे देखते हैं, then Moses said, what if they will not believe me or listen to what I say, for they may say the Lord has not appeared to you. इसके दिमाग में कई सवाल आते हैं। वो कहता है निर्गमन 4 अध्याय में 1 आयत में, मूसा के लिए प्रमाण। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, किंतु इस्राएल के लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। जब मैं उनसे कहूंगा तो तूने मुझे भेजा है, वे कहेंगे यहोवा ने तुमसे बातें नहीं की। ना ये सवाल उसके मन में हो रहा कि God has not spoken to you, you're simply saying God has sent you. He said they will not believe me because I am a person who is not good. वो अपनी
दिखाता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ लोग जो मेरे पर विश्वास करें. He wants to show God that he is not worthy of going to the people because they would not believe him. वो उस पे भरोसा नहीं करेंगे और वो जो है मुझे कहेंगे तुझे परमेश्वर कहाँ मिला, तुझे परमेश्वर नहीं मिला, ना परमेश्वर ने तुझसे बातें की हैं. This is a doubt which Moses has in his mind, that God has not met you, God has not appeared to you, so how come you are saying that God has sent the message? And therefore, this is the doubt which Moses has in his mind. हमारे मन में भी कई विचार आ जाते हैं जब हमें कुछ काम करने के लिए बोला जाता है, तो हम ये सोचते हैं ऐसा तो हुआ नहीं होगा, परमेश्वर ने तो ऐसा कहा नहीं होगा, या मेरे दोस्त ने ऐसा नहीं कहा होगा, मेरे मम्मी ने ऐसे नहीं कहा होगा. जब कोई हमें अपने माँ बाप की बातें बताता है या किसी फ्रेंड की बातें बताता है, if someone tells you your friend has said like this, you would not believe that that friend has said. You say, no, he has never appeared to you. He doesn't talk to you. How will he tell you? आप हमारा दोस्त तो आपसे बात ही नहीं करता, तो वो आपको कैसे बताएगा? हम भी जो है शक पैदा करेंगे अपने मन में. So here Moses has a doubt that people are not going to believe that God has appeared to him and God has sent him the message. So this is another problem which Moses is facing here. Now here we see यहाँ पे जो है उसका जो है उसने बहुत ज्यादा बहाने बना लिया है कि लोग मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे. अब मूसा के पास उसका लाठी थी, चरवाहे की लाठी उसके हाथ थे, और दूसरा जो था नील नदी का पानी. ये तीन चीजें हैं मूसा के पास. अब परमेश्वर इसको विश्वास दिलाना मांग रहा है कि परमेश्वर है जो कह रहा है मैं ही हूं जो तुझे भेजा है. Now God wants him to make sure, he wants him to trust God and believe. So he says, what do you have in your hand? He says, I have a staff. Then my hands are there, and then the river Nile. The three things are there which God is trying to make him understand and then show him that these are the signs which indicate that God is working in his mind. God is sending him with a message. ये तीन चीजों के द्वारा परमेश्वर उसे लोगों के पास भेज रहा है, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है. पहला जो चिन्ह था, God says, what is that in your hand? तेरे हाथ में क्या है? हम देखते हैं कि उसके हाथ में लाठी है. But the Lord said to Moses, stretch out your hand and grasp it by tail. So he stretched out his hand and caught it, and it became a staff in his hand. Then they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has appeared to you. तेरे हाथ में क्या? What is that you have in your hand? He says, I have a rod. He says, throw it on the ground. And when he throws on the ground, it becomes a snake. And so Moses moves back, and God says, pick up by the tail. So when he picks up by the tail, it becomes a rod again. यहाँ पे जो है ये एक ऐसा नमूना परमेश्वर दे रहा है ताकि मूसा को विश्वास और लोगों को विश्वास हो जाए. यहाँ पे वो कहता है, किंतु परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुमने अपने हाथ में क्या ले रखा है? मूसा ने उत्तर दिया, ये मेरी टहलने की लाठी है. तब परमेश्वर ने कहा, अपनी लाठी को जमीन पर फेंको. इसलिए मूसा ने अपनी लाठी को जमीन पे फेंका और लाठी एक सांप बन गई. मूसा डरा और इससे दूर भागा, किंतु यहोवा ने मूसा से कहा, आगे बढ़ो और सांप की पूंछ पकड़ लो. इसलिए मूसा आगे बढ़ा और उसने सांप की पूंछ पकड़ लिया. जब मूसा ने ऐसा किया तो सांप फिर लाठी बन गई. ये एक बड़ा अचंभित कार्य है जो परमेश्वर मूसा के पास कर रहा है. मूसा के हाथ में खाली लाठी है और वो कहता उसको जमीन पे फेंको, और जमीन पे फेंकता तो वो सांप बन जाता है और मूसा डर जाता है, पीछे हट जाता है. परमेश्वर कहता है, इस लाठी को इसकी दुम से पकड़ो. और जब वो दुम से लाठी को पकड़ता, उसको सांप को पकड़ता है, तो फिर से लाठी बन जाती है. व्हाट अ ग्रेट एग्जाम्पल God has given to Moses. He says, well, throw your staff on the ground. So he throws his rod on the ground. It becomes a serpent. Then he says, Moses is afraid.
he moves back. God says, hold the tail of the snake, it will become a rod, and that is what happens. ये सबसे बड़ा पहला मौजा जो मूसा के सामने होता है. First example which God is giving to Moses, and Moses knows now God is the one who is sending him. Now there is another one which God has to show him. Now he says, Exodus chapter 4, verses 6 to 7. Again, the Lord told him, put your hand into your bosom. He put his hand into his bosom, and as soon as he brought it out, it was leprous like snow. Then God said, put your hand back into your bosom. He returned it to his bosom, and as soon as he brought it out, it was restored like the rest of the skin. यहाँ पे हम देखते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं तुमको दूसरा प्रमाण दूंगा. First is the rod, which becomes the snake. The second is his hand. He uses. इसे तुम अपने हाथ को अपने लबादे के अंदर रखो. जो उसने पूरा का पूरा ड्रेस पहन रखा था, उसने कहा वो ड्रेस के अंदर अपने हाथ को रखो. इसलिए मूसा ने अपने लबादे को खोला और हाथ को अंदर किया. तो मूसा ने अपने हाथ को लबादे से बाहर निकाला और वह बदला हुआ था. उसका हाथ बर्फ की तरह सफेद दागों से ढका था. तब परमेश्वर ने कहा, अब तुम अपना हाथ फिर लबादे के भीतर रखो. इसलिए मूसा ने फिर अपना हाथ अपने लबादे के भीतर रखा. तब मूसा ने अपना हाथ बाहर निकाला और उसका हाथ बदल गया था. अब उसका हाथ पहले की तरह ठीक हो गया था. हम देख रहे हैं, God is using his hand. He says, put your hand in your bosom. अपना हाथ अपने अंगोछे के अंदर डालो. और वो डालता है तो ऐसा लगता कि उसके पूरे हाथ में कोड़ हो जाता है और वो घबरा जाता है. और परमेश्वर कहता है कि फिर से अपना हाथ लबादा में अंदर डालो. पुट योर हैंड इनसाइड योर बोसम. और जब वो फिर से अंदर डालता अपना हाथ और बाहर निकालता है, तो जैसे उसकी पूरा शरीर की खाल थी, वैसे ही उसका खाल हो जाती है. यहाँ पे इसका दूसरा एग्जाम्पल जो है, परमेश्वर इसको दे रहा है. पहला एग्जाम्पल लाठी और दूसरा उसके हाथ. God is giving him the first example is the rod, which becomes snake. The second is his hand, which he is putting into his bosom, turns out to be leprous. And then again he puts it back into his bosom and it becomes the skin, like the whole body, which was normal skin. And so here, this was the second example which God is giving to Moses so that he will believe him, that God has sent, and he will tell to the people. अब उसको दूसरा एग्जाम्पल जो मिलता है वो ये है कि परमेश्वर ने उसको भेजा है. परमेश्वर ने उसके साथ दो मौजे कर दिए हैं. And with these two miracles that God has performed for Moses, there is enough evidence for Moses to believe that it is God who is with him. It is God who is talking to him. It is God who is sending the message to the people of Israel in Egypt. So therefore, we have two examples here. Now let's see the third example which God is showing him. तीसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे जो परमेश्वर ने इसको दिखाया. ये कहता है कि मैं तो बोल ही नहीं सकता, आई एम स्लो ऑफ स्पीच, और मेरी जुबान से तो आवाज ही नहीं निकलती है. Then Moses said to the Lord, oh my God, I am not eloquent neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. मेरी जुबान भी नहीं चलती है और मेरा जो बात है मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे में आदत नहीं है. अब यहाँ पे देखते हैं, किंतु मूसा ने यहोवा से कहा, किंतु हे यहोवा, मैं सच कहता हूँ कि मैं कुशल वक्ता नहीं हूँ. आई एम नॉट ए गुड स्पीकर, एलोक्वेंट स्पीकर. मैं लोगों से कुशलता पूर्वक बात करने के योग्य नहीं हूँ. आई कैनॉट मिंगल विद द पीपल एंड टॉक टू देम लाइक हाउ यू आर टॉकिंग टू मी. और अब तुझसे बातचीत करने के बाद भी मैं कुशल वक्ता नहीं हूँ. आफ्टर स्पीकिंग टू यू गॉड, आई एम स्टिल नॉट एलोक्वेंट स्पीकर. So I am not a good orator, and therefore he shows his inability that he is not good in speech. तू जानता है कि मैं धीरे धीरे बोलता हूँ. He says, you know that I speak very slowly.
एंड उत्तम शब्दों का उपयोग नहीं करता. आई कैन नॉट स्पीक द फ्लावरी लैंग्वेज, सो देयरफॉर आई कैन नॉट स्पीक. तब यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? गॉड इज आस्किंग, हु मेड द माउथ ऑफ मैन? एक व्यक्ति को कौन बोलने और सुनने में असमर्थ बना सकता है? एंड दैट हु कैन मेक मैन who are unable to speak, unable to hear. मनुष्य को कौन देखने वाला अंधा बना सकता? Who can make man to see the things and make him blind? ये मैं हूं जो इन सभी चीजों को कर सकता हूँ. ये मैं ही हूं. मैं परमेश्वर हूं. मैं आदमी को अंधा कर सकता हूँ. मैं आदमी की आंखों को चंगाई दे सकता हूँ. मैं उसके मुंह से शब्द बुलवा सकता हूँ. ये सब मेरे में गुण है जो कि मैं अपने चुने हुए लोगों में डालता हूँ. This is what I do. I make the people speak. I make the people hear. I make the people talk. And then I know what I have to do. So this is only I can do. Nobody else can do. मैं ही केवल ऐसा कर सकता हूँ. मैं यहोवा हूँ. Because I am the Lord, I have the right to choose the person. I have the right to make you talk. I have the right to heal a person. Therefore you go. He tells him, इसलिए जाओ. जब तुम बोलोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. मैं तुम्हें बोलने के लिए शब्द दूंगा. ऐसे जाओ. He tells him, go. I will give you words to speak. And then you will be able to speak when I give you the words. This is my assurance to you. परमेश्वर उसको आश्वासन दे रहा, तुम जाओ. जो मैं बोलूंगा तुम वो ही बोलोगे. यहाँ पे मूसा को जो है हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि मैं पब्लिक में बोल नहीं सकता. Then he says, I don't want to go. आखिरी में जो कहता है मैं जाना नहीं मांगता हूँ. निर्गमन 4:13 में कहता है, और परमेश्वर का गुस्सा जो भड़क उठता है. और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये how does God handle Moses' last excuse about God's plan? But Moses said, oh Lord, please send someone else. मूसा कहता है, खुदा तो किसी और को भेज दे, मुझे मत भेज. Then the Lord's anger burned against Moses and he said, परमेश्वर को गुस्सा आ गया, क्योंकि हर बात पे परमेश्वर उसने उसको दिखा दिया मौजे. परमेश्वर ने उसको आश्वासन दे दिया. God is giving him the assurance. God has shown him the miracles. God has told him that he is going to be with him. In spite of all these things, Moses is saying, please send someone else to do it. Oh Lord, मुझे मत भेज, तू किसी और को भेज दे. अब जब इतनी चीजें परमेश्वर उसको दे रहा है, इतना सब उसको आश्वासन दे रहा है, और मूसा फिर भी कह रहा है तू किसी और को भेज, खुदा मुझे मत भेज. तो परमेश्वर को यहाँ पे मूसा के ऊपर गुस्सा आता है कि इतना कुछ बताने पे भी इसके मन में शक है और ये कह रहा है किसी और को भेज दे. लेकिन परमेश्वर, God has his own plans for the people. Whom he chooses, he will make them do. दाऊद को उसने चुना था राजा, और दाऊद को उसने राजा बनाया. सैमुअल को उसने भविष्यवक्ता बनाया, तो सैमुअल भविष्यवक्ता बना. यिर्मयाह को उसने जो है एक रोने वाला दुखी भविष्यवक्ता बनाया, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर का काम जाके करता था. उसको सजा भी मिलती थी, उसने दुख भी उठाए, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का काम करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना था. इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना और इब्राहिम वहां से निकल आया. उसने परमेश्वर से कोई सवाल नहीं किया. इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को कुर्बानी कर, वो वहां भी चला गया. उसने परमेश्वर से कोई सवाल नहीं पूछा. Now we have people like Jeremiah, who was a weeping prophet, always carrying the work of God in spite of the punishment he was getting, every message that he was giving to the people. He chose David to be the king of Israel, and David became a king of Israel. He chose Abraham to be the man. He came out of the place called Ur, never to go back. He never questioned God, where is he sending him? And then we see, he told Abraham, go sacrifice your son, and I will tell you where to go. Without questioning God, he goes again. But here, Moses is given all the assurance from God. परमेश्वर उसको वो आश्वासन दे रहा है, लेकिन मूसा कह रहा है
ओ लॉर्ड प्लीज सेंड समवन एल्स टू डू इट, किसी और को भेज दे ये काम के लिए, मैं नहीं करूंगा। जब इतना कुछ हो गया, मूसा ने सोचा कि खुदा अगर गुस्सा भी हो रहा है तो वो मुझे नहीं भेजेगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का जो प्लान है और आदमी का प्लान जो है परमेश्वर के प्लान के सामने फेल हो जाता है। और यही यहाँ पे भी मूसा के साथ भी वही होता है। यहाँ पे परमेश्वर अपना गुस्सा दिखाता है। Then the Lord's anger burned against Moses and he said, What about your brother Aaron the Levite? तेरे पास भाई है, वो भी लेवी के खानदान से है। गुस्सा आया परमेश्वर का, ये बार बार क्यों मना कर रहा है? ये कह रहा मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास ये परेशानी है। I know he can speak well. He is already on his way to meet you and his heart will be glad when he sees you. परमेश्वर को गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। कह रहा तेरा भाई आ रहा तुझसे मिलने, वो तुझे देख के बहुत खुश होगा और वो बहुत अच्छा स्पीकर है, और जब वो आएगा तो वो तेरे लिए बातचीत करेगा। यहाँ पे मूसा को एक सपोर्ट मिलती है, और वो सपोर्ट कौन है, सहायक कौन है? उसका खुद का भाई जो कि अच्छा स्पीकर है। परमेश्वर ने उसको जो है, मूसा ने कहा किसी और को भेज दे, परमेश्वर ने उसके लिए बोलने वाला उसके भाई को बुला लिया। लेकिन काम उसने मूसा से ही कराया। जो काम वो मूसा को बोलता था, मूसा अपने भाई हारून को बोलता था। परमेश्वर ने कभी भी डायरेक्टली हारून से बात नहीं करी, बिकॉज हारून वॉज द स्पीकर एंड गॉड वॉज the main God who was giving instruction to Moses, and Moses was like a God to Aaron. मूसा जो है हारून के लिए खुदा का काम कर रहा था, क्योंकि खुदा डायरेक्टली मूसा से बात करके और मूसा हारून को बोलता था, और तब जाके ये फिरौन के सामने जाके खड़े होते थे। हम देखते हैं कि जब हम अपने आप को सोचते हैं कि हम नहीं कर पाते, परमेश्वर कोई ना कोई हमारे लिए सहायक भेज देता है, जो कि उसने मूसा के साथ किया। मूसा ने बचने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर के आगे उसकी एक ना चली। यहाँ पे कह रहा, किंतु मूसा ने कहा, हे मेरे यहोवा, मैं दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे ना भेज। ना अगेन एंड अगेन मोसेस इज सेइंग सेंड समबडी एल्स, सेंड समबडी एल्स, किसी और को भेज। वो कह रहा है मैं दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तू दूसरे को भेज दे, मुझे मत भेज। यहोवा मूसा पे क्रोधित हुआ, ही गॉट एंग्री विद मोसेस। यहोवा ने कहा, मैं तुमको सहायता के लिए एक व्यक्ति दूंगा, मैं तुम्हारे भाई हारून का उपयोग करूंगा। वह कुशल वक्ता है, हारून पहले ही तुम्हारे पास आ रहा था, वह तुमको देख के बहुत प्रसन्न होगा, वह तुम्हारे साथ फिरौन के पास जाएगा। And he says, your brother is there, I'll give you a helper. Sometimes it is very hard to give. एक आदमी अगर जा रहा तो उसको थोड़ा घबराहट होती है, वो भी राजा के सामने खड़े होने के लिए। And that is what the fear Moses had. मूसा को वो डर था। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को दो दो करके लोगों में भेजा प्रचार करने के लिए, तो उसने दो दो करके भेजा, ताकि एक जो है दूसरा उसका सहायक के तौर पे उसकी सहायता करेगा। When Jesus was here on the earth, he sends his disciples two by two, so that one person will be encouragement for the other person. And therefore here, God is calling for Aaron, the brother of Moses, so then these two will be together and they will be able to encourage each other. And whatever message God is going to give to Moses, Moses has to give to Aaron, and Aaron is going to speak before Pharaoh. तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर उसकी परेशानी को समझ रहा है, लेकिन परमेश्वर जिसको चुनता है उसी से काम कराता है। God has chosen Moses after 40 long years. He was in the wilderness looking after the sheep of his father Jethro. 40 साल का समय जो मूसा को लगा, जब परमेश्वर ने इसको भटकने दिया जंगलों में भेड़ों की रखवाली के लिए, और ये इसमें धीरज आ गया। जो गुस्सा इसको था जब वो फिर मिस्र से भागा था, एक मिस्री का कत्ल करके, वो गुस्सा जो है इसने 40 साल लिए धीरज को कमाने के लिए, सहनशीलता कमाने के लिए इसने 40 साल लिए। He took 40 years to have patience staying with the sheep for 40 long years.
And therefore God knew this is going to be my best leader for Israelite. And Aaron is going to be the best speaker on behalf of Moses. परमेश्वर ने उसको चुना और उसको वो टैलेंट दिया, वो गुण दिया कि मूसा इस्राएलियों का एक बहुत बड़ा लीडर के समान प्रसन्न बना और उनको लीड आउट किया। और एरन जो उसका भाई था, चाहे वो उससे बड़ा ही था, लेकिन वो मूसा के शब्दों को जो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर देता था, हारून उसको मानता था और मूसा का जो वचन उसके पास आता था परमेश्वर का, वो जाके फिरौन के सामने उसको बोलता था। ये है परमेश्वर के लोग, जो कि परमेश्वर उनको ट्रेन करता है। आज भी कलीसिया में लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है। मूसा ने 40 साल लिए धीरज का सबक सीखने के लिए। आप और हमारा तो जीवन ही 70 और 80 और 90 साल है। हमारे पास समय है कि हम अपने मसीहत में धीरज रखें, एक दूसरे से प्यार करें और बहाने ना बनाएं। When we are making excuses, God is not happy, because God will make us to do the work that we want to avoid. Moses said, send somebody else. God did not send anybody else. In fact, he chose his brother to be the speaker for Moses. आज भी परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और यही हम चाहते हैं। बहाने मत बनाइए परमेश्वर के काम के लिए। Don't make excuses, but do the work that God wants you to do. And God is going to really bless you in everything you do. God bless you.